Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 96 for this topic sexual reproduction in flowering plants. We have started studying the part of the fruit formation. In the post-fertilization changes, we have seen how the endosperm is formed, how the embryo is formed in the seed, how the seed formation took place, and then after the fruit formation. In that we have seen that simultaneously when the ovule is converted into the seed or many ovules converted into many seeds, if fertilization has occurred in them, each ovule has got the potential to change into the seed. Then by the same time, the wall of ovary gets metamorphosed, that means it gets transformed into the wall of fruit known as pericarp. And then that forms the fruit that may go on enlarging and enlarging. Many of the times edible we know. तो फ्रूट के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था इन द टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स लास्ट ईयर 11th में. डू रेफर दैट टॉपिक, आई हैव गिवन दैट टॉपिक. ओके, तो उसमें आप देखेंगे दो टाइप के फ्रूट्स हैं, सिंपल फ्रूट एंड that true fruit and the what is that false fruit according to the mode of development. ट्रू फ्रूट क्या है और फॉल्स फ्रूट क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने आखिरी में थोड़ा एक्सप्लेन किया था. When the fruit is developed only and only exclusively from ovary and no other floral part is participating in it, यानी कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, even style, stigma, they become dry and fall off once the fertilization occurs. क्योंकि बाद में उनका कोई रोल नहीं है, पहले था, isn't it? अभी नहीं है. So they become dry and fall off. But only and only the ovary gets metamorphosed into the fruit. Then that fruit is developed exclusively from ovary and is called the true fruit. So abundant number of the examples we can give. Mango is there, pea is there, coconut is there, tomato, guava, lemon, oranges. Okay, so many. They are all developed exclusively from ovary. They are true fruit. पर false fruit और pseudocarp क्या होता है मैंने बताया था. Some of the time what happened there, some additional part, associated floral part also takes participation in the fruit formation. वो भी जोश में आ जाता है, ओवरी को कहता है आप तो फ्रूट बना रहे हो, ठीक है मैं भी सहायता करता हूँ आपकी, आई विल बी ऑल्सो देयर, आई विल ऑल्सो हेल्प यू, आई विल ऑल्सो पार्टिसिपेट. अभी वो ओवरी कहता है ठीक है भाई आ जाओ, isn't it? And then in that case that fruit is not developed only from ovary but also from some other associated part, and that is called as what? They're called as the false fruit. तो मोस्टली एप्पल और स्ट्रॉबेरी एग्जाम्पल्स जो है, और इवन दैट कैश्यू, काजू, तो उसमें क्या होता है, दैट थैलेमस ऑफ द फ्लावर, थैलेमस कहाँ पे होता है, एकदम बेस में होता है, पेडिसेल का एनलार्ज टिप. ये जो पेडिसेल हम दिखाते थे फ्लावर का, ये पेडिसेल, फिर ये पेडिसेल का जो एनलार्ज टिप होता है इसे कहते हैं थैलेमस. ओके, और इस थैलेमस के ऊपर ये ओवरी, देन दिस स्टाइल, देन दिस स्टिग्मा, देन एंड्रोशियम, गैनोशियम. ओके, ये एंड्रोशियम एंड करोला कैलिक्स. तो ये ओवरी और थैलेमस दोनों भी पार्टिसिपेशन करते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में. अब थैलेमस खुद ही होके बोल रहा है मैं आ जाऊंगा, तो वो ठीक है भाई आ जाओ, क्या है उसमें, क्या है, बड़ा फ्रूट बन जाएगा, isn't it? So at that time thalamus dominates, and the major part of that fruit, like that apple or that particular strawberry or cashew, will be formed by thalamus, and most importantly that is edible. यानी thanks to thalamus we are finding apple edible. ये देखो एप्पल का ये जो, तो उसे कहते हैं सीडोकार्प या फॉल्स फ्रूट. एप्पल का ये सेक्शन लिया है, isn't it? तो सेक्शन लेने के बाद देखते हैं हम
ये बीच वाला जो पार्ट है, सेंटर वाला, जो हम निकाल के भी फेंक देते हैं सीड्स वगैरह, दैट थोड़ा कार्टिलेजिनस रहता है, वो खाने के लायक नहीं रहता है, सो वो हम निकाल भी देते हैं उसे बहुत बार. सो दैट इज द रियल फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी. यानी थैलेमस अगर नहीं रहता था, देन एप्पल वुड बी नॉन इडिबल फ्रूट. तो एप्पल में जो इडिबल पार्ट है, फ्लेशी पार्ट है, दैट इज फॉर्म बाय थैलेमस. ये सराउंडिंग ये जो दो अभी सेक्शन में किडनी टाइप ये जो दिख रहे हैं, दे आर पर्टिकुलरली द थैलेमस पार्ट. ओके, एंड वी ईट दिस पार्ट, नॉट दिस मिडल पार्ट. ओके, इसका और एक सेक्शन अगर लेके दिखाया तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा आपको. थैलेमस इज द आउटर पार्ट. सेंट्रल पार्ट में ये जो है ये एक्चुअली फ्रूट वाला पार्ट है. It has got this outer epicarp wall, tough cartilaginous, middle mesocarp wall, उसके अंदर ये स्टोनी एंडोकार्प है, एंड उसके अंदर ये सीड्स है. ओके, सो दैट पार्ट जनरली वी थ्रो अवे while cutting the thalamus. Okay, while cutting that apple. Okay, and that's why apple is known as pseudocarp or fleshy fruit. So which part in the apple is edible biologically? Correct answer is thalamus, which is going to participate in the fruit formation during the formation of apple. Correct answer is the thalamus. Okay, सेम थिंग यहां पर भी होती है. पर अब ये देखो, एक ओवरी से एक ही फ्रूट बन रहा है. सो बाय दैट वे इट इज ए सिंपल फ्रूट. ओके, एप्पल इज ए सिंपल फ्रूट डेवलप फ्रॉम सिंगल ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर. पर स्ट्रॉबेरी एक मल्टीपल फ्रूट क्लास में जाता है. While learning the classification of fruit, you must have studied that simple fruit when single ovary of single flower develops one fruit. एक फ्लावर, एक ओवरी, एक फल, ये जनरली जहां पर होता है वो सिंपल फ्रूट होते हैं. फिर व्हेन ए सिंगल फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम सिंगल फ्लावर बट फ्रॉम मेनी फ्री ओवरीज, इट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट फ्रूट. हमने लर्न किया है उसमें कस्टर्ड एप्पल. एक फ्लावर से एक ही फूल बनेगा, पर उस फ्लावर में जो मल्टीपल ओवरीज है, पॉलीकार्पेलरी, एपोकार्पस, गायनोशियम है उसका, सो मेनी फ्री ओवरीज आर देयर. ईच ओवरी फॉर्म्स ए स्मॉल फ्रूटलेट, और सब मिलके एक ही फ्रूट बना के देते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल इज कस्टर्ड एप्पल, उसे कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट. और थर्ड क्लास जो है वो कौन सा क्लास है वहां पे? मल्टीपल फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट. तो उसमें क्या होता है, इन मल्टीपल फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट मेनी फ्लावर्स आर फॉर्मिंग ओनली वन फ्रूट. बहुत सारे फूल एक इन्फ्लोरेसेंस पे होते हैं, सब में मिलके एक, जैसे गिफ्ट देते हैं बहुत बार, isn't it? यानी सब मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, व्हाट इट में भी, हर एक के, और वो कंट्रीब्यूट करके एक बड़ा सा प्रेजेंट लाके देते हैं अपने सर को. बहुत बार मेरे बैच के स्टूडेंट्स ऐसा करते थे. मैं बोलता था यार इसकी क्या जरूरत है, आपका प्यार ही बहुत है, isn't it? बट दे वर गिविंग दैट. तो वो रहता है मल्टीपल फ्रूट, मेनी फ्लावर्स, सिंगल फ्रूट. तो स्ट्रॉबेरी ये इस टाइप में आता है, उसमें भी इडिबल पार्ट थैलेमस ही है, और बाहर के साइड में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? एचिन्स, जो वहां पे कचर कचर लगता है ना स्ट्रॉबेरी खाते टाइम, तो वो एचिन्स नाम के फ्रूट है. एक एक ओवरी से बने हुए, एक एक फ्लावर से बने हुए एचिन्स, दे आर कॉल्ड एज द सिंपल ड्राई सिंगल सीडेड फ्रूट्स. तो वो एचिन्स जो है विथ लार्ज नंबर ऑफ एचिन्स, इट इज ए मल्टीपल फ्रूट, ये ध्यान में रखो, एंड दैट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी फॉल्स फ्रूट. तो ये तो हमने देखा. कई बार हम और एक वर्ड यूज करते हैं, पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी आपको मालूम होगा क्या होगा? सीडलेस फ्रूट्स, दे आर प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन. या आर्टिफिशियल टाइप से हम बनाते हैं आजकल, isn't it? Seedless fruit which are produced without fertilization are known as the, what is that name given? Parthenocarpy. That is the name of the process, and parthenocarpic fruit.
कौन सा एग्जाम्पल है पार्थिनोकार्पिक? अभी बहुत सारे आते हैं. दैट पर्टिकुलरली नाउ डेज दैट एफर्ट्स आर मेड. बनाना जो है एक्चुअली वो एक्चुअली सीडेड फ्रूट है, पर हम जो खाते हैं वो सीडलेस है. ग्रेप्स, पर्टिकुलरली ग्रेप्स जो है वो सीडेड रहते हैं, पर हम जो खाते हैं आजकल वो सीडलेस होते हैं. ग्रेप्स है, बनाना है, and they are the examples of what? Parthenocarpic fruits. Okay, so I'm sure that you must have understood the part very properly. Now in the next lecture we shall learn regarding the advantages of the seed habit. वो भी बहुत important part है. Okay, so do give the likes and shares to this video. In the next video we shall meet again with the next concept. Thanks a lot.